ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، اسلام آباد، پشاور، لاہور سمیت کئی علاقوں میں زمین لرز اٹھی۔ سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، چترال اور آزاد کشمیر میں بھی جھٹکے، عوام کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے۔ اندرون پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں زلزلہ، حافظ آباد، قصور، رائے گنج میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 6.4 ریکارڈ، گہرائی 210 کلومیٹر تھی، مرکز کوہ ہندو کش تھا۔ کراچی میں اساتذہ کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج جاری، احتجاجی اساتذہ نے کنٹینر لگانے والوں کو بھگا دیا۔ احتجاجی اساتذہ پر پولیس کا کریک ڈاؤن، متعدد اساتذہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشرف کیس کے فیصلے کے بعد عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے مشرف کیس کے فیصلے کی حمایت کی، یہ انہیں اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ آئین پاکستان زندہ جاوید دستاویز ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے سپریم کورٹ ماضی میں بھی چیلنجز سے نمٹتی رہی۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا عوام کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ تعصب اور بدلے کا اظہار کرتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان کا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا سزا پر عمل درآمد کا طریقہ بخشیانہ ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی مدت ملازمت کا آج آخری روز۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ آج رات 12 بجے ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کو نامزد چیف جسٹس عشائیہ دیں گے۔ نامزد چیف جسٹس گلزار احمد کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جو فیصلہ آیا ہے اور خاص طور پہ جو زبان استعمال کی گئی، جو قومی جذبات کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے اظہار کے لیے ہم ضرور جمع ہوں۔ ہم اتوار کو لیاقت آباد کے فلائی اوور میں جمع ہوں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا مشرف کے خلاف فیصلے پر اظہار افسوس، اتوار کو لیاقت آباد میں مظاہرے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا فیصلے اور استعمال ہونے والی زبان نے عوامی جذبات کو مجروح کیا، فیصلے کے پیچھے چھپے عزائم کی انکوائری کی جائے۔ ملک کے کئی شہروں میں پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ صادق آباد، جہلم، تفتان، ڈیرہ مراد جمالی، سکھر اور بدین میں عوام سڑکوں پر آ گئے۔ شرکاء نے سابق صدر کے حق میں نعرے لگائے۔ پنجاب اسمبلی کے تاخیر سے شروع ہونے والے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں جھڑپ، اپنی تقریر کے درمیان بار بار مداخلت پر لیگی رکن ہنا پرویز بٹ نے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کو کھری کھری سنا دی۔ حکومت کا حضرت میاں میر دربار کی اراضی پر قبضے کا اعتراف۔ پی آئی سی حملہ کیس میں 10 روز سے مفرور وزیر اعظم کا بھانجا حسان نیازی منظر عام پر آ گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور۔ پریس کانفرنس بھی بلائی، اپنے خلاف ایف آئی آر کو غلط قرار دے دیا۔ انصاف برابری پہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے سنگل آؤٹ کر دیں اور انصاف ہونا تھا۔ یہ ایف آئی آر پہلے منٹ سے غلط ایف آئی آر تھی۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے اس کی کورٹ آف لا میں کوئی اوقات نہیں تھی اس ایف آئی آر کی۔ یہ قوم کے ساتھ یہ ایف آئی آر دھوکہ تھا۔ مجھے لال کرنے سے اگر انصاف ملتا، خدا کی قسم اریسٹ کریں گے، میں وڈرا کر کے اریسٹ دے دوں گا۔ خیبر پختونخوا میں بار کونسل کی اپیل پر وکلا کی ہڑتال جاری، کیسز کی سماعت نہ ہونے سے سائلین پریشان، زیر التوا مقدمات میں اضافے کا خدشہ، وکلا بھی تنگ آ گئے۔ ایک وکیل نے ہڑتال کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی، سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے میں فیکٹری سے لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا چوری، 4 افراد نے رات گئے فیکٹری میں واردات کر ڈالی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو موصول۔
फैसलाबाद में डकैती के बाद फरार होने वाले 2 डाकू शहरियों के नरगे में आ गए। अवाम ने पकड़कर खंबे से बांध दिया, जमकर ठुकाई की। खवातीन ने भी खूब हाथ साफ किया। पिटाई से दिल भरा तो मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर में डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक रिटेलर यूनियन के चेयरमैन की मैयत सड़क पर रखकर लवाहिकीन और ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कोयटा के इलाके कली जाकर खान में मकान में गैस भर जाने के बायस दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 बेहोश। जाँ बहक अफराद में 2 भाई भी शामिल। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज कोहे हिंदूकश और अफगानिस्तान था, जबकि गहराई 210 किलोमीटर थी। डीजी मैट मोहम्मद रियाज का कहना है कि जलजले के आफ्टर शॉक्स का खतरा है, ताहम ये जलजला ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। इस वक्त आपसे हम शेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए। 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंदूकश और अफगानिस्तान था, जबकि गहराई 210 किलोमीटर थी। बिल्कुल, आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं हम जलजले के हवाले से इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे शहाब से। जी शहाब, अपडेट कीजिए। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जलजले के शदीद झटके आए हैं आज, और ये झटके इतनी शदीद थी कि लोगों में खौफ और हरास फैलकर घरों से और दफातर से बाहर निकल आए हैं। और इस सिलसिले में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके हैं और खसूसन जो फाटा के जम अजला है, उसमें लोगों में शदीद खौफ और हरास फैल गया, क्योंकि उन इलाकों में इस तरह के जलजलों से माजी में बहुत सी नुकसानात सामने आए थे। लेकिन यहाँ पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मरकज कायम किया है, इमरजेंसी मरकज, जिसमें उन्होंने नंबर दिया है 1700, और उनका कहना है कि हम तमाम अजला में तमाम इलाकों के जो जिली इंतजामिया है उनके साथ राब्ते में है, लेकिन ताहाल कोई जानी माली नुकसान की इत्ला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से तो अहकाम जारी किए गए हैं कि जहाँ कहीं भी अगर कोई नुकसान पेश आया है तो सबसे पहले इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाए, और तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स और जो जिली इंतजामिया है उनके साथ पहले से उनका कहना है कि फंड्स भी मौजूद है और तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल है, लेकिन ताहाल कोई भी ऐसी नुकसान की इत्ला मौसूल नहीं हुई। ठीक है शहाबुद्दीन, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने। जी सलीम शेख, बताइए आफ्टर शॉक्स के बाद अब क्या सूरत हाल है, किस हद तक मामला जो है, हालात जो है वो बेहतर हुए हैं? जी, जो जलजले के बाद जो है हमारी रेस्क्यू के साथ भी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि अभी तक हमें जो है सिर्फ 3 कॉज मौजूद हुई हैं और उनमें जो है किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं है। एक बच्चा जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वो गिर गया, और इसी तरह जो है 2 मजदूर हैं वो भी काम करते हुए गिरे। उनके बारे में जो है वो रेस्क्यू को अभी ये नहीं मालूम हुआ कि वो सिर्फ जलजले की वजह से वो गिरे हैं या कोई और वजह। और एक स्टूडेंट था जायबिन रोड के करीब, उसको भी जलजले से जो है वो जी सलीम शेख इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि गो के 6.4 का बहुत तबाहकुन जलजला माना जाता है। ये शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि इसका मरकज जो है वो जमीन की गहराई में 210 किलोमीटर था और कोहे हिंदूकश में हुआ, तमाम पाकिस्तान में जो है इसके आफ्टर शॉक्स या इसकी शिद्दत जरूर महसूस की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने जलजले के शदीद झटकों के बाद पीडीएमए और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और किसी भी नाखुशगवार हादसे के पेश नजर मुताल्लिका महकमे और इदारों को चौकस रहने की भी हिदायत कर दी है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, बोनेर, सवात, शांगला और गिरदोनवा में जलजले के झटके। फैसलाबाद, लाहौर, खुशाब, मानसेरा, बालाकोट और मुजफ्फराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज को हिंदूकश और अफगानिस्तान था। जलजले की गहराई 210 किलोमीटर थी। डीआई खान, मर्दान, कोहाट, मालाकंड, वाना, गिलगित बल्तिस्तान, जड़ावाला, आरिफ वाला, 18 हजारी, समंदरी, पिंडी घेब, शकरगढ़,
टोबा टेक सिंह, पसरूर, पाकपतन, फिरोजवाला, साहिवाल, पतोकी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। डीजी मेट मोहम्मद रियाज कहते हैं जल्जले के आफ्टर शॉक्स का खतरा है। यह जल्जला ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, जल्जले की गहराई ज्यादा है, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं होगा। NDMA के मुताबिक जल्जले से अभी तक किसी किस्म के नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां कराची में असातिज़ा सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज इस वक्त उनका जारी है और एहतजाजी असातिज़ा ने कंटेनर लगाने वालों को भगा दिया। एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन कर दिया गया है। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, कराची में असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट करेंगे आप? जैसे हमारा राब्ता होगा हमारे नुमाइंदे से कामरान शेख से मजीद अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कराची में असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज, आज की स्क्रीन पर भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं। एहतजाजी असातिज़ा ने कंटेनर लगाने वालों को भी भगा दिया। एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन कर दिया गया। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। ये एहतजाजी जो इस वक्त जारी था, बेसिकली असातिज़ा जो है उनको अपनी मुलाजमत में मुस्तकली के हवाले से उनका ये एजिटेशन था, उनका ये एहतजाज था जो काफ़ी दिनों से प्रेस क्लब के सामने जारी था। आज उन्होंने कोशिश की सिंध असेंबली के बाहर जाकर या उस अतराफ में जाकर अपने एहतजाज को बढ़ाने की, जिस पे इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और बाकायदा कंटेनर जो वहाँ पर लगाए जा रहे थे उस कंटेनर लगाने वाले को भी जो एहतजाजी असातिज़ा है उनकी मुखालफत का, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद के मनाजिर आप ये देख रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल और इस वक्त असातिज़ा जो कि अपने मुतालबात के हक में वहाँ पर मौजूद थे उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची में असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज, एहतजाजी असातिज़ा ने कंटेनर लगाने वालों को भी भगा दिया, जबकि एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन कर दिया गया। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। जी फैज़ान जलीस, अपडेट कीजिए इस एहतजाज के हवाले से और उन असातिज़ा के हवाले से भी बताइए जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली के करीब जो है वो असातिज़ा की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी था। इस दौरान पुलिस एहलकार ने जो है वो जब इन एहलकारों को मुंतशिर करने की कोशिश करी है तो एहलकारों की जानिब से मुंतशिर करने के बाद असातिज़ा आपे से बाहर भी आए। इन्होंने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि दर्जन से ज़ायद असातिज़ा को जो है वो हिरासत में लिया गया है। कंटेनर लगाने वाले एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जिसको असातिज़ा ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसको वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जो मुश्किल असातिज़ा हैं जिनकी जानिब से ट्रैफिक पुलिस एहलकार को, लिफ्टर ड्राइवर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम इनको हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन दीगर जो एहतजाज करने वाले असातिज़ा हैं दर्जन से ज़ायद इनको हिरासत में लेके आदमरी मैदान और फरीदी थाने मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा ठीक है, असातिज़ा के हवाले से आप अपडेट कर रहे हैं, ये मुस्तकली के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, इनका एहतजाज किस बिना पर था और क्या किसी ने आकर इनसे मुज़ाकरात किए? जी बिल्कुल, इनसे मुज़ाकरात तो नहीं किए गए क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी इनकी जानिब से प्रेस क्लब के बाहर जो है एहतजाज किया गया था। उस दौरान भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 150 से ज़ायद असातिज़ा को हिरासत में लेने के बाद थाने मुंतकिल किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ये वो असातिज़ा हैं जिनको 2006 में और 2010 में जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट जिनको दी गई थी, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इनको लेटर नहीं जारी किए गए, जिस बिना पर इनकी जानिब से एहतजाज किया गया। इससे कबल भी 6 मरतबा जो है वो प्रेस क्लब के बाहर ही धक्का दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी असातिज़ा का एहतजाज जारी। एहतजाजी असातिज़ा ने कंटेनर लगाने वालों को भगा दिया और पुलिस ने क्रैक डाउन कर दिया इन असातिज़ा के खिलाफ। हमें फैज़ान जलीस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। गद्दारी केस के तफसीली फैसले के बाद तस्दीक आमेज मुहिम चलाई गई, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का खिताब, कहा जज का दिल शेर और आसाफ फौलाद की तरह होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़मीर 100% मुतमईन है, अगर किसी फैसले में नाइंसाफी हुई तो माजरत खा हूं। चीफ जस्टिस ने फैज अहमद फैज का शेर, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, ये शेर भी पढ़कर सुनाया, जिससे हॉल तालियों से गूंज उठा। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई। मुझे और अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक बात तज़हीक आमेज है, इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। सच हमेशा जिंदा रहता है और सच का बोलबाला होगा।
उन्होंने कहा कि जज का दिल शेर और आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए। ज़मीर 100% मुतमईन है, कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की, कभी किसी फैसले में ताखीर नहीं की। अगर किसी फैसले में नाइंसाफी हुई तो माजरत ख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने खिताब में फैज अहमद फैज की नज़्म का तस्करा किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज ज़ेर इल्तवा फौजदारी मुकदमात को निपटाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की, ऐसे वक्त में फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। खुसूसी अदालत जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। खुसूसी अदालत के जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का फुल कोर्ट रेफरेंस तकरीब से खिताब, कहा जस्टिस वकार की जानिब से सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी, वहशियाना और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। फैसला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रवायात से भी मुतसादिम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बोझल दिल से कहता हूँ कि जस्टिस खोसा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की, ऐसे वक्त में फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। उन्होंने कहा कि अपनी ऑब्जर्वेशन और फैसलों के हवाले से शायराना जज तसव्वुर होते हैं। बदकिस्मती से खुसूसी अदालत के हालिया फैसले में जस्टिस खोसा के वज़ा करदा कानूनी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया।